students, welcome to Mathematics Spine. We are taking the lecture on a chapter that is a chapter 7 as well as the 9. How so? Now chapter 7 in the new books and chapter 9 in the old one books. So you have to just focus on the name of the chapter, and that is the ratio, rate, time and speed. And again, exercise that we are going to start in the old one, it is 9a, and in the new books it is 7a. So your cues should be finished here. कि चैप्टर कौन सा मैम ये नहीं क्लियर हो रहा, न्यू बुक है ओल्ड बुक है. सो न्यू बुक्स में है 7a एंड ओल्ड बुक्स में है 9a. ठीक है, क्वेश्चंस आर सेम, देयर इज ओनली द just the number of the chapter is changed. So you have to take the start of the first question. As in the first video we learned, okay, what is the ratio. ठीक है, as we know that if I am going to repeat, that ratio is a comparison between two or more quantities. ठीक है, two or more quantities. Now, what is the two basic condition for solving the question? First is they should be of same kind. Their kind should be same, and the second is same unit. ठीक है, अगर तो ये दोनों कंडीशन आपके पास फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही, तो आप इसको सेम करोगे. काइंड तो सेम ही होती है हमारे पास, हमने यूनिट को सेम करना होता है. देन आफ्टर दैट वी मूव टुवर्ड्स द सिंप्लीफिकेशन. Kind में कैसे आ गया? The last video, remember the last video, in that video just give the example of the shopping bag of the wedges and an iron box or block. आपके पास काइंड सेम होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक आयरन वाली चीज है तो दूसरी आपके पास वेजेस हैं, एक कॉटन है तो दूसरी आपके पास कुछ और चीज आ रही होगी, स्टोन्स आ रहे होंगे. काइंड सेम होनी चाहिए आपके पास. देन यूनिट क्या आपके पास हो जाएगी? द measurable unit, and the measure unit, that is if one quantity is in kg and the other quantity is given in gram, so you have to convert this quantity in gram, or rather it's your own choice, you can convert this gram into kilogram. ठीक है, चाहो तो इसको कन्वर्ट कर लो, चाहो तो उसको कन्वर्ट कर लो. मिनट में अगर आपके पास कोई चीज आपको मिनट्स और सेकंड्स में दी हुई है, सो यू हैव टू अगेन मेक द यूनिट सेम. दोनों को या तो सेकंड्स में कर लो या आप मिनट्स में कर लो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप रेशियो को लिखोगे कैसे? दिस टू डॉट्स इज फॉर द रेशियो. ठीक है, ये आपके पास रेशियो में है. रेशियो वाली चीज आपके पास, सपोज अगर मैं a रेशियो b लिखूंगी, सो दैट्स मीन a डिवाइडेड बाय b. ये आपके पास टोटल था. व्हाट इज द रेशियो? टू डू द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर टर्म्स of same kind, same unit, and you can write the ratio in this standard form, and this ratio can also be written in the form of fraction. So this is all done with your recall of the chapter, recap of the previous knowledge, that is about the ratio. Now, by using this previous knowledge, we will solve the question number 1, in which we have to do the simplification or different units. First of all, you have to make it in the same form. Okay, ji. Now the first question is question number 1 part A. ठीक है, and this is 1:5, and the second, sorry, it is not 1:5, it is 1.5, and the second is 350 gram. Ratio 350 gram. 1:5 kg and 350 gram. Okay, done. So if you look at the question, so this quantity is given in kilogram and this is given in gram. Now it is your own choice. You can convert this quantity into gram, or rather you can convert this quantity into kilogram. जो सा इजी लगता है, जो आपका दिल चाहता है आप इस पे कर लो. मैं हमेशा जो आपके पास ग्रेटर क्वांटिटी होती है उसको मैं स्मॉलर वन में कन्वर्ट करती हूँ, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में चली जाती है. मुझे मल्टीप्लाई वाली इन कंपैरिजन टू डिवीजन इजी लगता है. सो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी इसमें ग्राम में. अब ये है 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम में हमारे पास होंगे 1000 ग्राम. ठीक है, सो हम इसको यूज करते हुए देयरफॉर का साइन पुट करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करेंगे. 1.5 किलोग्राम को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी ग्राम से, so 1000 gram and 350 gram. अब देखिए, ये भी ग्राम में आ गया और ये भी आपके पास ग्राम में आ गया. अब नेक्स्ट में आपने इस यूनिट को यहाँ पे इक्वल कर दिया. आपने आगे यूनिट जो ग्राम किया इसको आगे पुट नहीं करना. सो यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन. 1 5 कितने जीरो से 1 2 3 1 2 3. ओके जी. पॉइंट के बाद सिर्फ वन टर्म है आपके पास. कौन सी टर्म है? ये वाली 5.
पॉइंट के बाद फर्स्ट टर्म में एक ही टर्म है आपके पास, राइट साइड से काउंट करें, दिस इज योर राइट साइड, सो यहाँ से पॉइंट शिफ्ट कर दें इधर। जब पॉइंट आएगा इधर तो पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसको हम क्या कर देते हैं, कट। ठीक है, आप चाहो तो दूसरी तरह मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो ऐसे डायरेक्ट कर लो। तो ये तो जीरो हो गया कट, तो आपके पास एक्चुअल टर्म के 1500, तो मैं इसको रेस कर लूँ। ठीक है, और ये हमारे पास किसमें है, 350। देखो यहाँ पे मैंने ग्राम कॉपी नहीं किया, अगर आपको बहुत दिल चाहे तो आप एक स्टेप बोल कर दें, उसके नेक्स्ट में ग्राम दोनों साइड से रिमूव कर दें। अच्छा जी, कि हमारे पास होगी कंडीशन फुल कि हमारे दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में आके, अब आप आगे सिंप्लीफाई कर लो, 0 0 से कट कर दिया हमने। इसके बाद 150 कटिंग होता है, 5 3 15 एंड 0 5 7 35। अब आपके पास आ गया है 30:7। ठीक है जी, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अब इसको कोई ऐसे ना कर दे 30/7, ओके जी ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड में आंसर निकालो, नहीं, आपने देख लिया इसकी सिंप्लीफिकेशन और नहीं हो रही, यहाँ पे इसको स्टॉप कर दे। सो दिस इज ऑल डन विद योर पार्ट ए, नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्ट बी। ओके जी, पार्ट बी इज इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और अगर आपको दूसरी तरह करना है, सो यू कैन टेक द एलसीएम ऑफ 24 and 7 and multiply that LCM on the both side and do the simplification. मैं इस तरह से कर रही हूँ, दैट्स मीन 15 मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे 7 के साथ एंड आई हैव अ 9 मल्टीप्लाई बाय 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैनुअली, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ तो कमेंट्स में आना शुरू हो जाता है कि हाउ डू द मल्टीप्लिकेशन इन अ फॉर्म ऑफ मैनुअल। सो आप देख लो मैं कैसे कर रही हूँ। 5 7 is 35. You have to write in 35. 5 here and carry 3. 7 is 7, 8, 9, 10. So this is 105. Okay. Now ratio 24 multiplied by 9. 9 4s are 36. So write on 6 and carry 3. 9 2s are 18, 19, 20, 21. 216 216 19 20 21। ठीक है जी, ओके जी। नाउ you just have to check both the values if they are going to be in a form of simplification। किसी भी सेम टेबल से कटिंग होती है, so you can do the cutting here। तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं 3 से। 3 3s are 9, 1 carry, 3 5s are 15, 3 7s are 21 and 3 2s are 6। अब और हो रहा है? नो, अब और कटिंग नहीं हो रहा, तो ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन की। नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्ट सी। सेम ये वैसा क्वेश्चन है जैसे कि हमने प्रैक्टिस नाउ में किया था। आई फॉरगॉट कि प्रैक्टिस नाउ मेरे पास 2 थी 3 थी 2 थे आई गेस, लेकिन बिल्कुल वैसा ही है। आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव द पॉइंट। पॉइंट के नीचे आ जाता है 1, जितने डिजिट्स आगे होते हैं हमारे पास आ जाते हैं जीरोस। सो आप देखो 45 पॉइंट के नीचे हो गया 1, कितने जीरो से आगे 1 2, so put the 2 zeros. Done. Now put the fraction, sorry that is the ratio sign, then 8 and 5 again, point ke niche 1 and how many terms you have next to the point 1 and 2, so you have to put the 2 zeros here. Take the LCM, or rather you don't take the LCM, you definitely look that it's 100, so multiply 100 on the both side. So you have to cutting these two terms and you have 45:85। इसको कर देते हैं फिर हम कटिंग 5 की टेबल से। 5 9s are 45, 5 1s are 5, 3 carry, 5 7s are 35, 9:17। This is the simplest form। Yes, this is the simplest form। आगे और कटिंग नहीं हो रही, so this is done your part C। I hope so। देखो आपने हर दफा क्या करना है, आपने इसको डेफिनेशन को रिवाइज करना है। इस तरह आपको ऑब्जेक्टिव का भी पार्ट रेडी हो जाएगा कि किस तरह से आपने डेफिनेशन करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और प्रैक्टिस नाउ के साथ सिमिलर क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ठीक है यू हैव डन विद दिस, और मोर प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। सो दिस इज डन विद योर पार्ट सी। नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्ट डी। ओके जी, पार्ट 4। पार्ट 4 में आपके पास कितनी क्वांटिटीज हैं, 1 2 3। ये जो रेशियो साइन होता है दैट इज डिफरेंट, separate your first quantity with the second quantity, so you have the 3 quantities।
Here you have the unit milliliter, here you have liter, and again here you have the quantity unit in the third quantity, that is in milliliter. So या तो सबको liters में convert कर दो, या you have to convert all the quantities in milliliter. So we convert this liter into milliliter. So convert this quantity into milliliter, basically the liter into milliliter. What is need to do? 1 liter is equal to thousands milliliter. So you have to divide this quantity with the 1000. 580 milliliter. 1. Okay ji. When you multiply 1.12 by thousands, so it is convert into milliliter, and the next is 104 milliliter. Okay. So 580 milliliter. Do the multiplication. 1 1 2. Okay जी 0 milliliter. आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, अलग से पेज में मल्टीप्लाई करें. पॉइंट के बाद आपके पास कितने जीरो है? 3. तो 0.2 के बाद आएगा, 2 0 कट हो जाएंगे, सिर्फ एक जीरो इसके साथ आ जाएगा. सो नेक्स्ट इज 104 मिलीलीटर. मैंने डायरेक्ट किया, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए. ठीक है, अब सब हो गए मिलीलीटर मिलीलीटर मिलीलीटर. सारी क्वांटिटीज 3 की 3 क्वांटिटीज मिलीलीटर में आ गई, यूनिट सेम होगी. अब हमें इसको करना है कटिंग, और ये होगा 4 से कटिंग. यहाँ पे मैंने कॉपी कर दी यूनिट्स. नेक्स्ट स्टेप में ये यूनिट्स मैंने लिखूंगी. For 1s are 4, 1 carry, for 4s are 16, 2 carry, for 5s are 25. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिलीलीटर मैंने स्किप कर दिया. नेक्स्ट इज 4 2s are 8, 9 10 11, 3 carry, और 4 8s are 32 और ये 0 साथ कॉपी. देन फिर आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा? 4 2s are 8, 2 carry, 4 6 are 24. अब कटिंग हो रही है आगे? नहीं, इनकी कटिंग हो सकती है, इसकी नहीं हो सकती, इन दो की हो सकती है तो इसकी नहीं हो सकती. सो दैट्स मीन हमको 3 टर्म्स को सेम टेबल से कटिंग करना होगा. अब ये आगे डिवाइडिंग हो रही है. दिस इज आवर सिंप्लीफाइड आंसर. दिस इज आंसर ऑफ पार्ट डी. नाउ मूव टुवर्ड्स पार्ट ई. ओके जी, आई जस्ट राइट ऑन द पार्ट ई ऑन द बोर्ड. सो पार्ट ई में आपके पास कितनी क्वांटिटी? 1 2 3. 3 quantities and you have to find out the ratio of 3 quantities. So take the LCM of 3 2 and 4. 3 2 and 4 not 8. So 2 1s are 2, 2 4s are 8 again, 2 2s are 4, 2 1s are 2, and the last one is 3 1s are 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, and 8 3s are 24. So your LCM is 24. You have to multiply 24 with 3 terms. 24 multiplied by 2 by 3 ratio 24 multiplied by 3 by 2 again ratio 24 multiplied by 5 by 8. Okay, you have to multiply with 3 terms. Now do the simplification if possible. Yes, it is possible. 3 1s are 3, 3 8s are 24. So here you have 8 multiplied by 2, then ratio 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so 12 multiplied by 3. 8 1s are 8, 8 3s are 24, so 3 multiplied by 5. Now 8 2s are 16, 3 2s are 6, 3 1s are 3, and 3 5s are 15. This is answer part E. अब देखो इन दो की कटिंग हो रही है, लेकिन ये नहीं कट कर. अगर पॉसिबिलिटी बनती है इन दोनों की कटिंग की 3 के टेबल से, तो ये कटिंग नहीं होता. सो हमें इस तीनों को एक ही टेबल से कटिंग करनी होती है, सिंप्लीफिकेशन करनी होती है. तो ये आपका फाइनल तो इधर ही आंसर है. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज अ पार्ट एफ. ओके जी, पार्ट ई हमारे पास है. क्या चीज़ है कि डेसिमल की वैल्यूज है उनके पास. देखो सबसे पहले आपने इनके क्या खत्म करनी है? पॉइंट्स.
अगर हम डायरेक्ट भी करें तो देखो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो हमारे पास बन जाएगा 100, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो हमारे पास बन जाएगा 100, यहाँ पे 1 टर्म है तो हमारे पास बन जाएगा 10। जो ग्रेटेस्ट एलसीएम ले सबका तो आपके पास 100 ही आएगा, जिससे सबसे लार्जेस्ट वन होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के 3 टर्म्स को। सो 0.33 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.63 मल्टीप्लाई बाय 100। आप बेशक पहले की तरह कर लो, पहले पॉइंट फिनिश करो फिर एलसीएम लो। एक्चुअली मैं स्टेप्स जरा काम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं उसको मैंने नहीं किया, आप वैसे फॉलो कर लो, एक ही बात है। और 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 33, देन 63 और यहाँ पे हो जाएगा 180। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, सिंप्लीफाई कर ले, 3 1s are 3, 3 1s are 3, then 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 6 are 18 and 0। और कटिंग हो रही है नहीं, वो नहीं होगा, 11 प्राइम नंबर है तो ये बाकी स्टॉप हो जाएगा इधर ही। तो ये आपके पास हो गया पार्ट एफ के साथ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इस रेशियो का मतलब है क्या, यहाँ से आप इसको किस फॉर्म में लिख लें, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लें। डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो a मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 25a। वेरिएबल हमेशा बाद में होता है और कोफिशिएंट स्टार्ट में लिखा जाता है, कांस्टेंट नंबर। एंड 400 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 6 0 0 6 0 0 6 4 24। अब आपके पास कोफिशिएंट है वेरिएबल का कौन सा जी, और आपको a फाइंड आउट करना है, तो सो यू हैव टू डिवाइड इट योर कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। कोफिशिएंट आपके पास 25 है, वेरिएबल को छोड़ के जो भी आ रहा है ना ये आपके पास कोफिशिएंट है। सो 25 को हम कर देंगे बोथ साइड पे डिवाइड। a इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 96। डिवाइड कैसे किया आप देख लो, 2400 divided by 25, so 25 multiplied by 9 is equal to, and 5s are 45, 5 for carry, 9 2s are 18, 19 20 21 20 18 19 20 21 22, so 2 to 5, 2 to 5। Okay जी, now you have 25 multiplied by 5 6 5s are 30, 0 3 carry, 6 2s are 12, 13 14 15। सॉरी नोट 3, यहाँ पे आपके पास आएगा 1, बिकॉज 4 7 कैरी थे, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 3 बच गया, सो 3 में से -2 हुआ तो 1 आता है। सो 6 से करेंगे, सो 150 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है आपके पास, सो दैट इज इक्वल टू 96। नाउ यू हैव टू फाइंड सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Okay जी, now this is the question number 2 part 2, so you have to first of all write the question in a form of fraction 5b, this ratio sign by divided by it, and 2 divided by 5. So do the cross multiplication, 5 5s are 25, variable is b and 8 2s are 16. Now you have to find out the value of this unknown variable, so you have to divide the coefficient of this, that is the b, all the coming the box is a coefficient of b, so you have to divide it on both sides. Now to making the box is not necessary, I just draw this box for the purpose that this is your variable and whatever in front of the variable is the coefficient, so you have to divide it on the both sides. So do the cutting and simplification, b is equal to 16 by 25. Now they are not further going to be simplified, so this is your answer of question number 2 part 2. Now I move towards the question number 3. Okay जी, अगेन आप देखिए आपके पास क्या करना होगा, what is need to do, करना क्या है, so what is क्या करना, the करना is you have to do the cross multiply, so you have to multiply by 2x to 8, so 8 2s are 16, what is a variable here, that is x, then 3 and 5, 3 5s are 15 और 5, so इसमें
वैल्यू करनी क्या था, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई फाइंड आउट करना है, दैट्स मीन आपको ये भी नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, यानी कि आपको एक्स रेशियो वाई की फॉर्म में लेके आना है. सो आई कैन डू दिस क्वेश्चन बाय दिस एक्स रेशियो वाई. यहाँ पे मुझे एक्स है, मुझे क्या चीज चाहिए इस जगह वाई चाहिए. ये पहले हम कांस्टेंट को मूव करवा देते हैं, ऐसे करते हैं, पहले हम कांस्टेंट को मूव करवा देते हैं, वेरिएबल को हम सेपरेट कर लेते हैं इस कोफिशिएंट से. 16 को सो हम बोथ साइड में क्या कर लेते हैं, डिवाइड, ज्यादा इजी काम कर देते हैं. ये कटिंग हो गया, x इज इक्वल टू 15/16 y. अब ये जो y इधर है ना, मुझे इधर नहीं, मुझे इस जगह चाहिए, तभी तो ये बन सकेगा ऐसे x/y. सो क्या करना है हमें, ये जो y इधर है, ये देखिए इस टर्म के साथ कोई साइन नहीं है बीच में, तो ये हो रहा है मल्टीप्लाई. जब मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेनेवर यू मूव टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ इक्वल, तो ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा. सो यू हैव टू डिवाइड इट. यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. एंड हियर यू हैव 15/16. ठीक है, यहाँ पे y आपके पास इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ मूव करेगा तो साइन इन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, डिवीजन में मूव कर जाएगा. अब ये जो फ्रैक्शन का साइन है, इसका मतलब होता है रेशो. सो y x रेशियो y इज इक्वल टू, इसको भी लिख लें 15/16. इस फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें हमें डिमांड इस फॉर्म में किया था. सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4. आपको 3 क्वांटिटीज दी हैं, a रेशियो b रेशियो c, एंड दैट इज इक्वल टू 75/120/132. सो यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट पार्ट, a रेशियो b रेशियो c. सो जस्ट नोट डाउन द वैल्यूज. a रेशियो, value of a is 75, then b ratio, that is 120, and the third is c is 132. Now do the simplification if it's possible, so they can cut with the table of 3. 3 2s are 16, sorry 3 2s are 6, 1 carry, 3 5s are 15. ठीक है, माइंड में रखिए कटिंग कर रहे हैं. जिन स्टूडेंट्स को ऐसे मुश्किल लगता है, सो यू कैन, दे कैन डू लाइक दिस वे. Okay, 3 4s are 12, 0, and again 3 4s are 12, and 1 carry, 3 4s are 12. So this is the most simplest form of this part. Now solve the second part, that is b ratio a. So note down the value of b. Here you have the first values for the a, second values for the b, and the third values for the c. So you have to find out the value of b ratio a, and the a is 75. आपने इनके अरेंजमेंट को चेंज नहीं करना. 75 इधर लिख देंगे, b इधर लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा. सो यू हैव टू कीप द अरेंजमेंट द सेम वे. a की वैल्यू a बाद में था, बाद में b पहले था, तो b की वैल्यू पहले आ गई. सिंप्लीफाई करें अगेन. 3 4s are 12, 0, 3 2s are 6, 3 5s are 15. Now 5 8s are 40, 5 5s are 25. So this is a simplest form of the second question. Now third part of the same question, that is b ratio c. Now b ratio c is 120, ratio c 132. Okay ji. So 2 6 are 12, 0, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 6 10s are 30, 6 1s are 6, 6 1s are 6. So 10/1. अब और सिंप्लीफाई नहीं होगा. So this is your answer of question number 4. Now the last question of today's lecture, that is the question number 5. And that question number 5 is similar or practice now 1 that we have covered. Okay. Okay, now the question number 5 is, given me we have 14 boys and 25 girls, and if I read the question, there are 14 boys and 25 girls in a school. So school badminton team find the ratio of the number of boys to the number of girls. Okay ji, we have a given number of boys, that is 14 boys and 25 girls, and the first part is to find out the ratio. Okay, ratio means the number of boys to the number of girls. ठीक है, boys to the number of girls. So first of all, you write down the ratio of boys
ratio to the number of girls. ठीक है. Now students have the question, मैम कैसे पता चलेगा कि हमने किस तरह से लिखना है? So you just have to focus of the word on the words. Number of boys to the number of girls, that means boys are going to be comparison with girls, तो पहले boys आएगा बाद में girls आएगा. ठीक है. Now you have the number of boys, that is 14, and the number of girls, that is 25, and this is the simplest form, कोई cutting नहीं हो रही, so this is only the part I. Now the second part of this question is the number of girls to the number of to the total number of the players in the team. The number of girls, okay ji, girls are going to be comparison with the total number of players in the team. So you can write total players. ठीक है. Now girls, the number of girls is 25, and the total number of the players, so total students are 14 and 25. You have to add these two numbers, so 9 and 3, so that's 39. Total players means that here you have to add the 25 plus 14. ठीक है. The total number, the number of girls to the total number of the players in the team. So this is done with your question number 5 too. So today we have covered from question number 1 to question number 5. Still, if there is any query, so you are free to put your query in the comment box. And at the end, if you like this video, so you have to like the video, subscribe the channel, and share as possible as you can. So take care of yourself, and Allah Hafiz.